Hello, welcome everyone to this online module session. Students, as informed, I was scheduled to conduct this online session with you all with the objective that our main goal of this online session will be to understand the worksheet very nicely. So, basically, the agenda for today's online session will be we will be discussing top 25 questions from the topic coming up in the weekly test. Okay, so agenda quite clear, vision quite clear. That is to do most of the topics related to this session from this module. That is question number 1 to 25 from the question bank or the worksheet related to Pandas series. Okay. Now, the first question up for you on the screen is basically the question is quite simple, which is the process of analyzing a large set of data points to get answer to a question related to that of the data set. So, you all must be knowing that the collection or conglomeration, that means डेटा को एक साथ कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उससे कंक्लूजन निकालना, that is also known as data science because it is the science behind collecting and visualizing and basically statistically manipulating the data. So the correct answer for here will be data science. So already आप देख सकते हैं कि it is given in bold. The correct answer will be data science here. Moving on to the next question. That is, we are done with question number 1. And before we go, children, I would like to tell you one thing very clearly that I have already shared my contact detail here. That is, this is my WhatsApp number. Many of you have already added my number into the group, but still, I would request that you can contact me over this email ID also, the official email ID for the school. Now, what is the acronym of DLC? If you know the real meaning of DLC very nicely, that was taught in the class. Okay, so what exactly is DLC? DLC, or basically D stands for here, data, L stands for here, life, and C stands for here, cycle. So, what is actually DLC? So the concept of DLC is somewhat like this. That is, whatever data we have. Suppose this is a data that is there. Okay. Now in this data, that is whatever raw data that we are putting in. Alright. Those raw data are getting processed. We are processing those raw data, and after processing this raw data is getting converted into what? It is getting converted into info, that is meaningful data. So on the process of this, there is a transition of data from one point to another. That is raw data getting converted into information visually, statistically. That again is a part of the DLC. In DLC, particularly in the scene of pandas, what are we doing? We are converting the data in two different ways here. Whatever data we are putting, as you know, in pandas, there are mainly three data structures that are there. Panda series is one of them, data frame is one of them, data heap is one of them. So in Panda series, as you know, it's a sequential or one-dimensional allocation of data. So we are basically converting that one-dimensional allocation of data into meaningful information, and the process by the help of which we are doing it, that is called DLC. Now in DLC, what are the different formats in which we can store data? So let me tell you, we can store data in the form of XLS file, which is an Excel file. We can store data in the form of comma separated value file, CSV file, or at the same time we can also store data in the form of HTML. So that is why the answer for this will be number D,
that is HTML. So correct answer for here will be HTML. So I hope so as of now we have discussed three questions जहाँ पे हमने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन है analyzing large set of data to get questions related to the data set. That answer will be data science. The second question was acronym of DLC, उसका full form होगा data life cycle. The third one will be we can upload file of different formats, be it Excel file, comma separated value file or HTML file. Why we can upload? Now the question is why we can upload? Because in DLC there is a provision of support of different file formats. Mainly in Pandas framework, these three are the predominantly used files. But apart from that, you can add multimedia images also. Now in DLC, data can be transformed and converted into same formats. It can be converted into same formats now. And after conversion of that transform data, that is raw data to meaningful data, statistically analyzable data into some predominant format, where do we store it? What is the concept behind the storage of it? So let me tell you, suppose if we have any form of unorganized data, let me have any form of unorganized data like 101, Amar, 8, it doesn't convey any information. There's three different sets of data. But once we have analyzed it, that 101 is the student ID, student name is Amar, 8 here is class. So that is how you see that this raw data is getting converted into information. Now after the information has been converted, after it has been analyzed using different tools, particularly the tools that I am trying to analyze here or emphasize here are, we are using here data statistics, numerical Python, by the help of which we are analyzing it. Pandas will be used for storing the data in different data structure formats, be it one dimensional, two dimensional. After we have finished manipulating, storing the data, we can simply collect huge chunks of data, because pandas, you're learning pandas, it is not because you're learning the statistics of data, you are learning also the manipulation, the statistics, the analyzation, and later on which we are carrying it forward. Because if you do not store that data, you will not be able to visualize that data, which you will be learning in your next chapter, that is data visualization, where we'll be graphically manipulating and analyzing the data. Okay. In DLC, once the converted or transformed data. So the answer is clear, it will be data warehousing, because we are collecting and storing huge chunks of values of data in one place. Okay. So in DLC, once the converted or transformed data is stored, we can form any of the analysis. Can we do joining? Yes, we can do that. We can do joining, obviously. We have done that also in the class, remember everyone? We have done analyzing in class. How did we do analyzing? We had joined different sets of data. I taught you how to join two different sets of lists. For example, let us see how do we join. Like suppose if we define a list L1, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Alright, we define L2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, suppose if I join here as L3 is equal to L1 plus L2. And what I will do, I will simply use another variable r equals to pandas dot series L3. So see, basically we are joining the two different lists or sets of data into one pandas series variable, which is r. Merging also is basically merging the data. We can merge different elements, like I taught you how to convert list into a series, converting you see dictionary into a particular pandas series. So these are the operations we can also perform. Searching operations, yes, we can search for different data, but if we know the index position.
we can search as per the index position. Like suppose if I want to search for 4, so I should be knowing that the index is either from left to right. Okay, so I will just write here L of index. If we talk about the index here, if we want to search for 4, so it will be 0, 1, 2 and 3. So I can simply write here L1 of 3. So it will simply return the data as 4. So we can search by the index position. We can search multiple values also by specifying index slicing like 3 colon 4 or 3 colon 5. So the output will be 4 and 5. Okay, so in this way we will be able to do it. So once and foremost, that means all the operations can be performed here. So the correct answer will be all of this. Now, Pandas tool was developed by, it is easy to remember, don't get confused between Guido van Rossum and John Hunter, because Guido van Rossum was the creator behind the Python programming language. John Hunter was the person who created, the matplotlib library. The correct answer for this will be Wes McKinney. Wes McKinney was the person who created the Pandas library. Now in DLC, after the analyzation of the data is done, which stage is performed? Just a few minutes ago I discussed with you, that is converting the data into meaningful information after DLC. Then we have to manipulate it, store it, then represent it. And when we come about for representation, the only possible thing by the help of which we can represent is in the form of graphical notation. So data visualization is all about graphical rep or graphical representation. And when we talk about graphical representation, the correct answer will always be data visualization being the last stage. Now pip, very important question, everyone please take note. Pip stands for preferred install package. So pip is basically the prime command by the help of which we install any form of packages. Now another tool that is used for checking the package index once the Python is installed, to verify the authenticity of the package, we use another tool called PyP. PyP is Python package index. So whenever we download the package, we need to check the MD sum, और MD sum means the credential of the package, कि वो पैकेज जेन्युइन है कि नहीं. तो सपोज अगर हम pandas लाइब्रेरी यूज करेंगे तो pandas का पैकेज आईडी जो है दैट इज PAN0032, that is the package ID. So this PyP is used for verifying that package index so that we can able to use it for future reference. Now which of the following is the correct command to install pandas library? ये भी अब तो आपको अच्छे से याद रखना है कि always remember pip जो है in small letter, the correct command is pip install pandas is the correct command to install pandas library. So pip install pandas होगा correct answer. Now it is a one-dimensional data structure storing homogeneous and mutable types of data. So homogeneous data is always Panda series, क्योंकि Panda series में only one form of data is always placed here. अगर हम string डालेंगे तो string डालेंगे, अगर हम number डालेंगे तो number डालेंगे, अगर हम number ही डालेंगे तो number ही डालेंगे. That means it should have one set of data all the time. सिर्फ एक set of data हमेशा होना चाहिए. And mutable also. Mutable in the sense, is it able to update? Yes, because Panda series के data को हम add on कर सकते हैं. कैसा add on कर सकते हैं? There are two ways of inserting the data. One of them is series modify, या फिर simple term में आप series, suppose ये Panda series का variable का नाम आपने s दे दिया था, आपको second position में चाहिए, तो s of 2 is equal to, suppose यहाँ पे आपको अमर देना है
और panda series will be updated as per the index position. So is it okay? I believe index position के साथ आराम से हम अपडेट कर सकते हैं. Now choose the correct syntax of panda series. Always remember panda series का correct syntax हमेशा pd.series data और followed by the index position, क्योंकि सिर्फ डेटा जो हम डालते हैं वो मान लो कि ये पैंडा सीरीज है, अगर आप इंडेक्स पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई नहीं करोगे तो डेटा कहाँ पे जाएगा, दैट विल बी अननोन. नाउ बाय डिफॉल्ट ये खुद ब खुद इंडेक्स ले लेता है, सिर्फ डेटा डालने से भी हो जाता है, लेकिन आपको मान लो आपको अभी क्वेश्चन में दिए गए हैं कि एक डेटा आपको इंसर्ट करना है जहाँ पे इंडेक्स ABCDE होना चाहिए. So then you have to specify index ABCD like this in a list, ABCDE as index. So by default index will be numbered sequentially from 0 to the n number of terms. But जब आपको index दिए जाएंगे, that is why you need to know the correct syntax here. So question answer will be 13 का A. Panda series is a combination of, again it is just a twist of question number 13. Panda series will be a combination of 1D data and associated index. क्योंकि वन डायमेंशनल है, इसमें दो डायमेंशनल नहीं है, एक ही डायमेंशन है विच इज द रो इनपुट. सो इंडेक्स पोजीशन भी जरूरी है क्योंकि कौन सा डेटा कौन से इंडेक्स पोजीशन पे जा रहा है. सो अगेन द आंसर विल बी नंबर बी हियर. Now to get the bottom three rows of the series you may use which function? tail 3. इसको अभी हम लाइव अभी करके देखेंगे. आई एम गोइंग टू ओपन Jupyter नोटबुक फॉर यू. तो जब तक Jupyter ओपन होता है तब तक हम, एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड अप, कि यहाँ पे सिंपल मैं कभी नोटबुक ओपन करूंगा, आई विल नॉट गो इन टू माई डायरेक्टरी और यू नो आई विल जस्ट स्टार्ट सिंपली वर्किंग विथ इट. जो सेव फाइल है अभी सिंपली आपको एक फाइल ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे यू नो वी कैन सिंपली क्रिएट अ सीरीज. पहले एक सीरीज को डिफाइन करेंगे. सो Jupyter इज ऑलरेडी ओपन. सो फ्रॉम द Anaconda Navigator I will open the Jupyter notebook. It is opening in the meantime. So हाँ, तो हम जो बता रहे थे आपको कि करना क्या है. बेसिकली करना ये है हमें फिलहाल कि एक पहले तो हमें एक सीरीज डिफाइन करना है. इन दैट सीरीज दैट विल बी डिफाइंड. ओके, तो उसके अंदर एज पर द क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन, दैट इज टू गेट द बॉटम 3 रोज ऑफ द सीरीज यू मे यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ठीक है, तो ये है हमें करना है. तो वी विल गो टू द Anaconda फोल्डर, और हम बाहर भी बना सकते हैं. मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी, देखो ये डेटा विजुअलाइजेशन का काम चल रहा है. तो यहाँ पे मैं एक अभी ब्लैंक फाइल, क्योंकि हम लोग वर्कशीट कर रहे हैं तो लेट मी नेम इट एज वर्कशीट. और यहाँ पे जो हमें करना था कि पहले इंपोर्ट पैंडास एज पीडी कर लेते हैं. इंपोर्ट पैंडास एज पीडी. यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझो. सो मैंने एक लिस्ट ले लिया. लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू हम डाल रहे, लाइक सीरियली डाल देते, 1 2 3 4 5 6 56 हो गया 7. Now what I will do here is इसी को एक वेरिएबल के अंदर हमें इसको प्रोजेक्ट करना है कि pd डॉट, एंड ये पर्टिकुलरली जो मैं ये सिखा रहा हूँ फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट दैट गुड, यू नो, जिनका थोड़ा भी हेड और टेल के कंसेप्ट में आप लोग थोड़ा वीक है. एक ही सेशन में आपको ये समझा देंगे कि कैसे ये निकल के आता है. तो हमने वेरिएबल ये यूज किया था l. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट जो क्वेश्चन था बॉटम मोस्ट डेटा ऑफ द सीरीज. बॉटम मोस्ट डेटा ऑफ द सीरीज, उसके इसको करने के बाद
हम अभी क्या कमांड फायर करेंगे, जो वेरिएबल यूज किया था, दैट इज r डॉट टेल, और हमें कितने चाहिए थे, इफ वी गो बैक टू r डॉट टेल यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि बॉटम थ्री हमें चाहिए। तो बॉटम थ्री को एक्सेस करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर r डॉट टेल 3 दे देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया डेटा, दैट इज 6 और 7, इंडेक्स पोजीशन 5 और 6 में अवेलेबल है, ठीक है। इनफैक्ट 4 भी है, क्योंकि 3 डेटा हमें चाहिए था। तो इंडेक्स पोजीशन 4 में यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूं, तो ये देखो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लगभग आ गया है न्यू लाइन में 4 5। तो इंडेक्स पोजीशन 4 में आप देख सकते हो, इंडेक्स पोजीशन 4 में है 5 विच इज द बॉटम मोस्ट डेटा, इंडेक्स पोजीशन 5 में है 6 बॉटम मोस्ट डेटा, इंडेक्स पोजीशन 6 में है बॉटम मोस्ट डेटा 7। सो ऐसे हमको ये आउटपुट मिला है। नाउ आई विल इम्प्रोवाइज इट, एक ही बार में डाउट को क्लियर करते हैं। अभी मुझे अगर ऊपर वाले हिस्से का चाहिए, दैट इज आई वांट द फर्स्ट 3 डेटा, तो इसी चीज को हम लोग रिपीट करेंगे कि प्रिंट। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मान लो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दिया, चेंज करके मुझे चाहिए द टॉप मोस्ट डेटा ऑफ द सीरीज, ये वाला मुझे चाहिए, टॉप मोस्ट डेटा ऑफ द सीरीज। तो मैं क्या करूंगा, अभी r डॉट हेड फंक्शन यूज करूंगा, r डॉट हेड, और उसके बाद सपोज फिर से 3 डेटा चाहिए हमें, r डॉट हेड 3। तो यहाँ पे 2 आउटपुट निकल के आया, आप लोग देख सकते हो। जीरोथ इंडेक्स में 1, जीरोथ इंडेक्स में 1 आ रहा है, और फर्स्ट इंडेक्स में 2, सेकेंड इंडेक्स में 3। समझ गए? आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये प्रोग्राम से ही पूरा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इफ डेटा इज एन एनडी एरे, यानी कि नंपाई एरे है, तो इंडेक्स मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। अगर एनडी एरे है, इंडेक्स क्या सेम लेंथ का होना चाहिए, एंड सीरीज मस्ट बी वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे केपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। अभी आपको एक और प्रोग्राम में लेके आपको दिखाते हैं कि ये बोथ ऑफ द अबव ट्रू है कि नहीं। पहला पॉइंट समझो कि नंपाई एरे में एरे का जो लेंथ है वो डेटा के साथ सेम होना चाहिए। अब इसको आपको कैसे देखना है कि पहले आप एक लेबल डेटा दे दीजिए, फिर अलग से इंडेक्स असाइन करके देखिए। अगर इंडेक्स आपने कम दे दिया, लेबल आपने लेबल्स ऑफ डेटा आपने ज्यादा दे दिया, तो एरर आएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, सीरीज इज अ 1D डेटा केपेबल ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी डेटा टाइप। सीरीज में कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू जाएगा। ये दोनों अभी साइमल्टेनियसली चेक करके देखेंगे। तो पहला हम चेक करेंगे हैशटैग, आई होप सबको ये विजिबल है। हाँ, तो देखिए, और मैंने थोड़ा जूम कर दिया। तो हम पहले चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें बताया गया था, व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन, दैट इज इंडेक्स एंड डेटा मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। तो इंडेक्स और डेटा क्या सेम लेंथ का होना चाहिए, तो हम वो चेक करेंगे। चेकिंग इंडेक्स और डेटा ऑफ सेम लेंथ, ये हम चेक करके देखते हैं। जो भी देखो बेटा, आप लोगों के लिए जो भी हम प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, वो एकदम फालतू का ज्ञान नहीं देंगे। आई विल सिंपली गो टू द जुपिटर नोटबुक या फिर स्पाइडर, ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि वैलिड आउटपुट आ रहा है कि नहीं, बिकॉज दैट इज अवर कमिटमेंट फ्रॉम द कंप्यूटर डिपार्टमेंट कि ड्राई रन शुड बी पैरेलल टू दैट ऑफ द सॉफ्टवेयर रन। सो इन दैट वे, तो अभी क्या करना है हमें कि चेक करना है कि पैंडास में जो सीरीज है उसका डेटा वैल्यूज और इंडेक्स का लेंथ सेम होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से चलो एक बार फिर इंपोर्ट पैंडास एज पीडी ले लेते हैं, नेसेसरी नहीं है। अभी जो मेनली आपको लेना है दैट इज, क्योंकि हमें नमपी एरे लेना था, तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये वाला लेना है।
इंपोर्ट numpy एज np, ये दोनों आपने ले लिया। अभी क्या करना है आपको, अभी मुझे वो सीरीज डिफाइन करना है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, फर्स्ट मैं क्या करूंगा, वही वैल्यू रिपीट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 8, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फर्स्ट स्टेप जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है नम्पी एरे में। तो क्या करेंगे, b इज इक्वल टू np डॉट क्योंकि हमें नम्पी एरे डिफाइन करना है, ठीक है। ये पहले हमने ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं अभी b को डिस्प्ले कर रहा हूं। तो देखो ये नम्पी एरे में कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू नम्पी एरे। क्लियर एवरीवन? अभी क्या करना है, इसी स्टेप को कंटिन्यू करना है कि हमें अभी इस b को कन्वर्ट करना है पैंडा सीरीज के अंदर, ओके। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, चलो c इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज। हमने दे दिया यहाँ पे b, क्योंकि पूरा b का जो डेटा है L से आएगा। b का डेटा यहाँ पे देखो, b का जो डेटा है, ये b का डेटा L से आएगा, ये L से आएगा, और ये b डेटा कन्वर्ट हो जाएगा पैंडा सीरीज में, समझे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि ये कन्वर्जन होगा, b के बाद हमें अभी क्या देना है, दिस इज द डेटा पार्ट। मैं यहाँ पे इंडेक्स असाइन करने वाला हूं, और यहाँ पे आएगा झटका, जहां पे आप देखोगे कि जब मैं इंडेक्स डिफाइन करने वाला हूं, इट विल गिव एन एरर। सपोज थोड़ा प्रॉपर तरीके से करने के लिए चलो 4 इंडेक्स देके देखते हैं, 4 इंडेक्स देके देखते हैं। और यहाँ पे ये मैंने दे दिया। अब जब डिस्प्ले की बारी आएगा, आप सिंपली सी करके, मैं प्रिंट सी में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वायर लेंथ मैच डेटा इंडेक्स एरर आ गया है। और क्या एरर आया है, लेंथ ऑफ वैल्यूज 8 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट वो होगा ट्रू, वो सही था। और दूसरा अभी जो करेंगे, अभी इस एरर को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल कितने वैल्यूज हमने दिए हैं अभी, चेक करो, 1 2 3 4, और 4 हमें ऐड करने हैं, और 4, तो 2 हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, और 2 हमें ऐड करना है। ये हो गया कंप्लीट। अभी जब ये करेंगे E F G और H, ये हमने कर दिया। अभी डिस्प्ले करेंगे, ये देखो आ गया डेटा। तो समझे। तो पॉइंट नंबर जो ये आपको डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है कि जो इन नम्पाई एरे का लेंथ हमेशा डेटा के साथ सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल एरे capable of holding of any data type. Series is a one dimensional labeled array capable of holding any data type. ये भी चलो चेक करके देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। अभी मैं जाऊंगा पैंडा सीरीज के अंदर। अभी पैंडा सीरीज के अंदर ही इस डेटा को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, 6.5, 7.25, 4.9, इसको चलो स्ट्रिंग कर देते हैं ABC, ओके। ऑलराइट, आप देख सकते हो कि डेटा टाइप यहां पे शो कर रहा है U32, यानी कि ये यूनिकोड में चला गया। यही फर्स्ट क्लियर एविडेंस है कि डेटा किसी भी टाइप का ये ले लेगा। अभी इसी चीज को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो अपडेट हो गया। तो एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, इतना जो आपको मैंने दिखाया,
एंड रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? द आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव, यानी कि नमपी अरे का लेंथ भी हमेशा इंडेक्स के साथ सेम होना चाहिए, और वन डायमेंशनल जो डेटा होता है वो कोई भी डेटा टाइप को पकड़ सकता है। कैसे कोई भी डेटा टाइप को पकड़ सकता है? ऐसे ही नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया कि यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में एबीसी विच इज स्ट्रिंग टाइप हमने डाला है, थर्ड इंडेक्स पोजीशन में 4.9 फ्लोट टाइप डाला है, ऐसे करते हुए एक और जगह 6.5 डाला है। सो दैट इज ऑल्सो यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम डाल रहे हैं, ठीक है। नाउ टू गेट टॉप 3 रोज ऑफ द सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, व्हाट यू विल यूज? आपको मैंने अभी अभी दिखाया कि राइट टू लेफ्ट अगर होगा, राइट टू लेफ्ट यानी कि टॉप 3 रोज राइट टू लेफ्ट कहा जा रहा है, तो आप कौन सा वाला यूज करोगे? हेड वाला यूज करोगे। तो उसी कमांड को अगर हम चेंज कर देंगे, टॉप मोस्ट डेटा ऑफ द सीरीज राइट टू लेफ्ट आर डॉट हेड -3, ठीक है। ये देखो, ये अभी राइट टू लेफ्ट से पकड़ेगा डेटा को, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो आर डॉट हेड -3 होगा डेटा, और आर डॉट हेड 3 और -3 में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट पोजीशन का अंदर है, ठीक है। तो हेड -3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा फिर से एक और बार देख लीजिए। अगर हम पैंडा सीरीज को डिफाइन, ऑलरेडी पैंडास इंपोर्ट पैंडास एसपीडी किया हुआ है, तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं डालता हूं, मैं सिंपली डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। चलो एक और बार करके देखते हैं, कभी कभार ये एरर आ सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर, क्योंकि ये पिछले कोड को रेफर कर रहा है तो इसीलिए एरर आ गया। एक एरर नहीं है, ये बेसिकली वार्निंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम r इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज करें, और प्रिंट करें r को, तो यहाँ पे देखो वो वार्निंग आया और सीरीज एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो वार्निंग इधर आया था, अगर सेम चीज मैं यहाँ पे s को डिस्प्ले करता, अभी देखो s को डिस्प्ले करता, तो वहां पे भी एम्प्टी शो करता, ठीक है। तो ऐसे आप एम्प्टी टाइप पैंडा सीरीज बना सकते हैं। तो अभी आपने तो आंसर देख लिया है कोडिंग में, तो ये होगा आंसर। While creating a series in which of the following way you must need to specify the index, ये भी आपने अभी अभी देखा, ये भी आपने अभी अभी देखा कि कैसे वो निकल के आता है। हमेशा सीक्वेंस में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप आउटपुट जब निकल के आता है, ठीक है, हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट, ये आप देख सकते हो, आउटपुट हमेशा सीक्वेंस में आता है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6। सो द करेक्ट आंसर इज हियर ऑलवेज यूजिंग अ सीक्वेंस। इनफैक्ट डेटा भी आप जब इंडेक्स असाइन करोगे, ABCD मैंने डाला था, वो भी इन अ सीक्वेंस ही आपको डालना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट अ पैंडा सीरीज यूजिंग, हम सीक्वेंस से क्रिएट कर सकते हैं, टपल नंपाई एरे से, हाँ, और इवन यूजिंग एनडी एरे। सो टपल एनडी एरे सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है यहाँ पे? सीक्वेंस है सीरियल वैल्यूज, उसके थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नंपाई एरे और टपल का आपने तो देखा है, चलो एक बार सीक्वेंस से क्रिएट करके देखते हैं, क्या हम क्रिएट कर सकते हैं? आप लोग बताएंगे नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सीक्वेंस मतलब वैल्यू भी हम वही डालेंगे, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया था ना, अब हम डेटा डाल के देखते हैं।
डेटा डालने के लिए अभी क्या करेंगे, हमें डिफाइन करना होगा, दिस इज द सीक्वेंस, उसके बाद इंडेक्स डिफाइन कर दो, इंडेक्स इक्वल्स टू, ये भी आपको ब्रैकेट में डालना है, सपोज आप इंडेक्स डाल रहे हो 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, कितने डेटा हैं यहाँ पे, 5 है, तो ऑलरेडी हमने 3 डाल दिए हैं, 1.4 तक हम डालेंगे, 1.4, ठीक है। अभी अगर डिस्प्ले करेंगे, ये देखो आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये जो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि टपल, सीक्वेंस मतलब इन द फॉर्म ऑफ टपल डालना है, बट एक्चुअली ये टपल नहीं है, क्योंकि टपल आपको पता है इट्स अ फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। सीक्वेंस मतलब आप डायरेक्ट इनपुट करोगे पैंडा सीरीज और उसका इंडेक्स डेटा जो भी आप चाहते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, okay. Now while importing pandas and numpy, you must use identifier name and spd and np only. Choose the correct answer. So what will be the correct answer here? That is import pandas as numpy करने के लिए identifier name में क्या आपको पकड़ना पड़ेगा? Choose the correct answer is no, it is not necessary. No, it is not necessary will be the correct answer, because pandas को import करने के लिए और आपको numpy को use करने के लिए you have to use identifier, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, because we can do without it. Now output based question, output based question is basically used for taking the output, okay. आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आएगा, दैट इज pd डॉट सीरीज np डॉट रैंडम रैंडम n4। यहाँ पे डायमेंशन किसको डिफाइन करता है, डायमेंशन डिफाइंस द डायमेंशन ऑफ द डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे इसको करना है, import pandas as pd, import pandas as pd, ये वाला आपने डिफाइन कर देना है पहले, ये तो आपको पता ही है। अभी नेक्स्ट स्टेप एज पर द क्वेश्चन क्या था दिया गया, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट, फिर आपको रैंडम मॉड्यूल भी, यहाँ रैंडम मॉड्यूल भी यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, ये आपको डालना है। उसके बाद इंपोर्ट, वहां पे एलियास नहीं होगा, इंपोर्ट रैंडम। ये मुझे एक लड़की ने उस दिन सवाल पूछा था कि सर रैंडम डालना है कि नहीं, ओके। द करेक्ट आंसर इज रैंडम नहीं डालना है आपको, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको सीरीज इनपुट लेना है, s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और उसके बाद हमें क्या यूज करना था, हमें रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम नंबर यूज करना था। वो आप कैसे देंगे, वो आप ऐसे देंगे, दैट इज np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, उसके बाद 4 डिजिट दिए गए थे, ठीक है। और लेट अस सी द क्वेश्चन अगेन, फाइनल आउटपुट है प्रिंट s डॉट ndim, प्रिंट s डॉट ndim, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रिंट सीरीज वेरिएबल s डॉट ndim, ठीक है। तो इनिशियली आप जब भी ये करते हो, ये एरर आपको आ सकता है, दैट इज इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करें, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इट, व्हाट यू कैन डू हियर, आप पहले सिंटैक्स चेक करो, s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज np डॉट रैंडम डॉट रैंडन। कभी कभार अगर रैंडम फंक्शन नहीं ले रहा है तो आप सिंपली
रैंडम मॉड्यूल को हटा के भी आप देख सकते हो कि वो लेगा कि नहीं. If you get this error, this differs actually from one interpreter to another. ठीक है, फिर भी हम देख सकते हैं कि एरर आ रहा है. सो in order to rectify it, we will be using रैंडम नंबर का जो इंपोर्ट रैंडम पैकेज है. और ये नॉर्मली आ सकता है, इट इज़ नॉट लाइक इट विल नॉट कम ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग सीन. ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप फिर से थोड़ा सा एडिट करना होगा हमें. एंड इफ़ यू एनकाउंटर दिस एरर, एक्चुअली द आंसर तो वन ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को अगर कभी भी ऐसा टाइप का एरर आए, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, np डॉट रैंडम डॉट रैंड ब्रैकेट ओपन करना है n, यहाँ पे आप वो रैंडम नंबर जो है आप डायरेक्ट डाल सकते हो, n इज इक्वल टू 4. You can see the output has come. Okay, np.random.randn. All right. तो यहाँ पे randn इसका मतलब काम कर रहा है, randn is working. लेकिन हमें randn से तो मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए. तो एक्चुअली हमने क्या किया कि n इक्वल्स टू 4 बाहर ले लिया. तो कभी कभार ये कंपाइलर में, ये इंटरप्रेटर में ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको ऐसे करना है तब. ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, तब ऐसे आपको करना है. ndim s.ndim फंक्शन का क्या आउटपुट निकल के आएगा ये हमें देखना है. अभी आप इसको दो तरीके से देख सकते हो. ठीक है, पहला जो है आपको करना है, s.ndim दैट इज देयर इज एन एट्रीब्यूट. ठीक है, तो प्रिंट s.ndim आप प्रेस करोगे, इट विल रिटर्न 1. सो error will be had come at that time, basically because दो चीजें हैं. कभी अगर वैल्यू आप डायरेक्ट लोगे तो नहीं आ सकता है, एट्रीब्यूट फंक्शन एरर आ सकता है, या फिर वैल्यू आप बाहर डिफाइन कर दो, एक बार रैंडम नंबर चेक करके आप एट्रीब्यूट यूज करो, वो एरर रेक्टिफाई हो जाएगा. So correct answer is 1 because the data is one dimensional. Pandas is an open source Python library, क्योंकि हम Python programming language सीख रहे हैं और ये Python का library है. Now which one of the following statement is correct to print sequence? Okay. So अभी ये कैसे समझना है हमें, देखो पहले इसका ड्राई रन करके देखते हैं. 35, 38, 41, 44. ठीक है, अभी ये जो डेटा है, दिस डेटा दैट इज गिवन हियर, यू ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म. अब देयर इज अ पैटर्न हियर, यू कैन सी इट इज इंक्रीजिंग बाय 3. हियर आल्सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 3 and here also there is an increase of 3. So everywhere there is a pattern where it is increasing by 3. So ऐसा अगर सिचुएशन होगा, it is quite logical कि हमें ये वाला ऑप्शन ही लेना है, बिकॉज n-1 रूल के अंदर जो लास्ट रेंज वैल्यू है उसको इग्नोर किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. करेक्ट आंसर इन दैट रिगार्ड शुड बी बी. ऑलराइट, बट एज आई टोल्ड यू, हम जो भी करेंगे वो एकदम पूरा कोडिंग में एकदम अच्छे से चेक करके करेंगे. सो अभी फिर से इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट pandas एज pd, ये करो. उसके बाद डायरेक्ट एक सीरीज जो डिफाइन करना है आपको,
क्योंकि आपको एस ही यहाँ पे दिया गया है, तो चलो वी यूज एस हियर ओनली, नो वरीज. एस इज इक्वल टू range, you must remember 35, 45, 3. So PD dot series, यहाँ पे रेंज कौन सा यूज किया गया था? रेंज was, for that again you have to take range value here. Under that 45, sorry, 45 was not the input. Let me check once again. Exactly, it was 35 to 45 to 3. Okay, so 35 से लेके 45 तक, 35 to 45, comma 3. 3 was the step counter here and S. ये अगर हम देंगे तो 35, 38, 41, 44. So 44, तो आप देख सकते हो 44 यानी कि वही जो बात मैंने कही कि लास्ट जो 45 है उसको इग्नोर किया जा रहा है. ठीक है. Now we come down to the last question. Which of the following is the correct statement for creating a series to assign none to all series of element of 5 elements? तो सारे पांचों इंडेक्स में यानी कि चारों इंडेक्स में नन वैल्यू असाइन करने का कोड क्या होगा? तो द करेक्ट आंसर विल बी इंडेक्स फ्रॉम 1 to 5 and data that will be provided as none. दिस इज अगेन हमने सीक्वेंस के अंतर्गत इसको किया है. वी हैव डन यूजिंग सीक्वेंस बिकॉज if we apply sequence under the sequence only, that is none here means no value at all. Index will refer to each of the position of data value as none. So that means what I am trying to say here, आसान भाषा में 1, 2, 3, 4 and 5, each of them will point to the same value again and again, which is none, from 1 to the 5th position. So is it true? Is it for real? Let us check it. Import pandas as PD. Imported. Next, हम लोग डायरेक्ट एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे and will directly put the value over there. So S is equal to PD dot series. सीरीज के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू डालेंगे नन, कॉमा index. Now do you know none also means a data type here, which means nothing at all. Okay, so अभी इंडेक्स डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5. ये डाल दिया हमने. S for printing. So we can see all the value that will be given will be not a number, not a number, not a number. So that means none or NaN will be applied to all the numbers. So that means option number B is the correct answer. Option B will be correct in this case. Okay. So with this we have come to the end of the first 25 questions of discussion. और let me skip back to the first page. अगर कोई भी doubt होगा, you can reach out to my WhatsApp number today and email me also. This PDF containing the solution explanation will be provided to you in the group today. Thank you. I hope you have learned many things today. With this, I am Devdip sir here for you all, signing off.